Assalamu alaikum. Continuing with our lecture series, today we are going to discuss one more property of transition metal compounds, and that is color formation in transition metal compounds. Likewise, ये भी एक distinguishing characteristic है transition metal compounds का, that is different from normal S block and P block elements. So transition metal compounds में एक unique characteristic होता है that most of the transition metal compounds are colored. उसके क्या reasons है, what are the factors that affect the color formation there, वो सारी चीजें इसमें discuss होगी इस lecture में. तो first of all, let me discuss with some examples. कुछ examples से start कर लेंगे. I will try to compare with S block compounds and transition metal compounds. I will see कि कहाँ पे color है, कहाँ पे color नहीं है. Let me first of all write some S block compounds या salts, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है. These are S block compounds. Now going to the transition metal compounds, starting with copper sulfate pentahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, a well-known compound जो आप सभी को नाम याद होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, potassium dichromate. On one side I have written compounds of S block metals, and on another side I have written compounds of transition metals. If you look at all these compounds are colorless. ये सारे के सारे compounds colorless है. But if you look at these compounds, इन सभी compounds में color है. Copper sulfate, name is blue vitriol. Obviously इसका color तो blue है. Second compound, iron sulfate, named as green vitriol. तो obviously color तो green ही है. Potassium permanganate, इस compound का color जो होता है, it's purple color. पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका जो कलर है इट्स ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड. सो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स कलर्ड और एस ब्लॉक मेटल के कंपाउंड्स कलरलेस. सो इट इज अ मार्क्ड डिफरेंस कि ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स मेनली कलर्ड होते हैं. ठीक है. सो वी विल से most of the transition metal compounds, not all, most of the transition metal compounds are colored. इनके कलर का रीजन क्या है वो हम डिस्कस कर लेंगे. So what is the reason behind color formation that we are going to discuss in this topic. So first of all, the main reason behind color formation is, main reason behind जो सभी compounds में color का reason है, that's electronic transition. Electronic transition. The reason responsible for color formation is electronic transition. Now, what is electronic transition? You may be knowing this. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज द फिनोमिनन जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. ठीक है. मान ली इलेक्ट्रॉन यहां पे है, लोअर एनर्जी स्टेट, यहां से अगर हम एनर्जी प्लॉट कर लेंगे, एनर्जी इज इंक्रीजिंग लाइक दिस. इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट पे है, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी. ठीक है. तो इस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम दिस लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज सिंपली it's the movement of electron from lower energy state to higher energy state by the absorption of energy. This is called as electronic transition.
ठीक है। नाउ क्या सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं? आंसर इज नो। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कैन नॉट प्रोड्यूस कलर। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं? उसका आंसर इंपॉर्टेंट है। दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। ओनली दोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कैन प्रोड्यूस कलर विच ऑकर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। सो कलर दिखाने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विजिबल रीजन में होना चाहिए, विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तभी कलर आएगा। दैट इज, जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को टू मूव फ्रॉम दिस लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट, दैट एनर्जी शुड फॉल or that wavelength should fall in the visible region of electromagnetic spectrum. ठीक है। So I'm writing the point here. Point 2, only those electronic transitions can give color which occur in visible region of electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को टू मूव फ्रॉम दिस हाई लो एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, ये एनर्जी विजिबल रीजन को बिलोंग करनी चाहिए, या क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी है यहां पे, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वेवलेंथ में भी। इट कैन बी रिप्रेजेंट लाइक hc by लैम्डा। जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए वो वेवलेंथ होनी चाहिए विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में ये कंडीशन फॉलो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कलर प्रोड्यूस करेंगे, और जो इसके बाहर आ जाएगा वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो कलर हमें नहीं दिखेगा। सो दिस इज द पॉइंट इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पहला पॉइंट हमने ये लिया, द रीजन ऑफ कलर इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। पॉइंट 2, क्या सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कलर प्रोड्यूस करेंगे? नो। अब कौन सी प्रोड्यूस करेंगे? वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो विजिबल रीजन में होगी। एनर्जी और वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शुड बी इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ तीसरा पॉइंट यहां पे जो डिस्कस हम करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करेगा विजिबल रीजन में, और बाकी एनर्जी को छोड़ेगा, बाकी एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है। जब इस कंपाउंड पे लाइट पड़ेगी, ये विजिबल रीजन में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, एक पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब करेगा, और जो बाकी है उसको छोड़ देगा। इस बेसिस पे जो कलर ट्रांसमिट करता है कोई भी कंपाउंड, दैट इज कंप्लीमेंट्री टू दैट कलर विच इज एब्जॉर्ब्ड। जो कलर हमें दिखता है, जो कंपाउंड कलर ट्रांसमिट करता है, the color that is being transmitted is complementary to that color which is absorbed. तो जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है और जो कलर ट्रांसमिट हुआ है वो आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं। सो थर्ड पॉइंट ये है, द कलर दैट इज ट्रांसमिटेड, दैट इज ट्रांसमिटेड is complementary to that color, which is absorbed, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कलर और ट्रांसमिटेड कलर आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हमें कैसे पता चलेगा
कि कौन सा कलर किस कलर का कंप्लीमेंट्री है। इस पे ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं कि अगर कंपाउंड इसका कंपाउंड का कलर ये है तो बताओ इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, हमें जो कलर दिखेगा वो ट्रांसमिटेड कलर होता है, तो इसका कंप्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, एक आसान तरीका मैं दिखाने वाला हूं। कंप्लीमेंट्री कलर्स निकालने के लिए हमारे पास एक व्हील होता है जिसको कहते हैं वैगन व्हील और मुंशील्स व्हील, तो उससे आप निकाल सकते हो कंप्लीमेंट्री कलर्स। बिफोर आई विल गो टू दैट कंप्लीमेंट्री कलर व्हील जिसको हम कहते हैं मुंशील्स और वैगन व्हील, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो टू द कलर्स प्रेजेंट इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वेव गॉयर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, नाउ वैगन कलर व्हील और मुंशील्स व्हील ये बनाने के बाद आपको एकदम से पता चलेगा कि किस कलर का कंप्लीमेंट्री कौन सा कलर होता है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल मेक 3 लाइंस लाइक दिस, और दूसरा बिल्कुल ऐसे, और तीसरा हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, नाउ पहले 2 ओवरलैपिंग कलर्स VI यहां रख दीजिए, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ठीक है, अगेन 3 लाइंस हमने बना दी, माने 3 लाइंस। उसके बाद जो कलर्स है विजिबल रीजन में, उन कलर्स को आप बिल्कुल इस तरीके से अरेंज कर दीजिए। वायलेट और इंडिगो ओवरलैपिंग है, सो वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ठीक है, नाउ कौन से कलर्स कंप्लीमेंट्री, जो कलर्स एक दूसरे के अपोजिट आते हैं वो आपस में कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, अब देख लीजिए, रेड और ग्रीन अपोजिट है, इसका मतलब रेड और ग्रीन आपस में कंप्लीमेंट्री कलर्स है। ब्लू और ऑरेंज आपस में कंप्लीमेंट्री कलर्स है। वायलेट, इंडिगो एंड येलो आर कंप्लीमेंट्री कलर्स। जरा एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। ठीक है, दिस हैज बीन आस्क्ड क्वेश्चन इन द JEE। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, जो ऑलरेडी हमने लिया पहले। कॉपर सल्फेट का जो कलर है दैट्स ब्लू, तो उसका ट्रांसमिटेड कलर ब्लू है। अब बताइए इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा। तो उसका कलर अगर ब्लू है तो ब्लू का कंप्लीमेंट्री कलर कौन सा है, इट्स ऑरेंज। इसका मतलब उसने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट पियर्स ग्रीन, उसका कलर ग्रीन है। ठीक, तो बता दीजिए उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा। आंसर इज सिंपल, ग्रीन का अपोजिट कौन सा है, रेड, तो इसका मतलब ये है कि उसने रेड कलर एब्जॉर्ब किया है, या उसने वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू रेड कलर एब्जॉर्ब किया है। दिस वाज द थर्ड पॉइंट। ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग कलर फॉर्मेशन। अभी तक मैंने 3 बेसिक पॉइंट्स लिए। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स कलर्ड है, हमें इनका कलर डिस्कस करना है, वो आगे डिस्कस होता जाएगा। तो कलर का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक, नाउ कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कलर प्रोड्यूस करेंगे, ओनली दोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कैन गिव कलर, कैन प्रोड्यूस कलर विच ऑकर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड और wavelength required for that transition should belong to visible region of electromagnetic spectrum. And third, the color that is being transmitted is complementary to that color which is absorbed. कौन से कलर्स आपस में कंप्लीमेंट्री कलर्स है, वो आप मुंशील्स या वैगन कलर व्हील से निकाल सकते हो। जो अपोजिट कलर्स आते हैं ये आपस में कंप्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, now we have to discuss color in reference to transition metal compounds. transition metal compounds में colors के क्या रीजन है।
ठीक है, तो obviously transition should occur in the visible region of electromagnetic spectrum. There are so many transitions which do occur in the visible region of electromagnetic spectrum. ठीक है, तो उनमें से कुछ transitions का नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ. Transitions which occur in visible region, which occur in visible region. कौन कौन सी ट्रांजिशंस विजिबल रीजन में है? बहुत सारी है, मैं कुछ लिखने वाला हूं. फर्स्ट, n pi star transition. I will explain every point. Second, pi star. Third, DD transition. Fourth, FF transition. And fifth, charge transfer spectra. ये कुछ ट्रांजिशंस मैंने लिख दी जो विजिबल रीजन में ऑकर करते हैं. ठीक है, पहली ट्रांजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? n pi स्टार ट्रांजिशन. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम n energy level या n orbital to pi star orbital. What is meaning of this? n pi star. Electron will move from this to this. Molecular orbital theory में 3 टाइप के molecular orbitals मिलते हैं. बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और तीसरा होता है नॉन बॉन्डिंग. ठीक है, आपने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पढ़ा होगा, लेकिन तीसरा नॉन बॉन्डिंग भी होता है. अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार मींस एंटी बॉन्डिंग. इफ इलेक्ट्रॉन विल अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, देन इट विल शो अ कलर बिकॉज दिस ट्रांजिशन ऑकर्स इन विजिबल रीजन. ठीक है, अनदर एग्जांपल है पाई स्टार. ऑब्वियस बात है, पाई स्टार. That means transition will occur from pi bonding to pi antibonding. This is pi bonding to pi antibonding. This is second transition. Third one, DD transition. DD transition, d orbital there. That means electron will undergo transition from lower energy d orbital to higher energy d orbital. This type of transition is called as DD transition. क्यों होगा, कैसे होगा, अभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. FF transition, obvious बात है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी f ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी f ऑर्बिटल. दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन कॉल्ड एज FF ट्रांजिशन. ठीक है. फिफ्थ वन इज अ स्पेशल फिनोमेनन दैट इज चार्ज ट्रांसफर. चार्ज ट्रांसफर होता है बिटवीन मेटल और लिगेंड ऑर्बिटल में. जो आपने लिगेंड्स पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, या तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम लिगेंड ऑर्बिटल टू मेटल ऑर्बिटल या मेटल ऑर्बिटल टू लिगेंड ऑर्बिटल. ये भी आगे डिस्कस कर लेंगे. तो ये कुछ ट्रांजिशंस है जो विजिबल रीजन में आते हैं. ठीक है, नाउ n pi star and pi star, these two transitions mainly occur in organic compounds. DD transition, FF transition and charge transfer spectra, these three transitions occur in inorganic compounds. This time we are discussing D block elements. Obviously हमारा concern इन transitions के साथ होगा. D block में obviously DD transition, F block में FF transition और charge transfer spectra दोनों cases में possible हो सकता है. ठीक है, so we have to discuss color formation transition metal compound that will arise because of these three transitions. DD transitions, F ब्लॉक में FF ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दोनों केसेस में हो सकता है. सो दिस वाज व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर कलर फॉर्मेशन. नाउ वी विल मूव टू द मेन पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस हियर. ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में कलर का रीजन किस किस ट्रांजिशन की वजह से होता है. ठीक है, तो वो डिस्कस करना है. नाउ deviating from the normal trend of teaching color formation transition metal compounds,
जनरली वी गो विद डी ट्रांजिशन एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन मैं ट्रांजिशन पढ़ाने से पहले दो रूल्स पढ़ाना चाहता हूं। वो कौन से रूल्स है? दीज आर द रूल्स विच गवर्न ट्रांजिशन। The rules that govern transition are called as selection rules. ये selection rules आगे हमें यूज करने हैं। तो बिफोर ट्रांजिशन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इंसाइट होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए अबाउट selection rules. Selection rules. What are selection rules? These are the rules which will govern the transition, कि ये ट्रांजिशन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये ट्रांजिशन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस होगी कि नहीं होगी, वो रूल्स, उन रूल्स को हम कहते हैं सिलेक्शन रूल्स, ठीक है। ये सिलेक्शन रूल्स, दो सिलेक्शन रूल्स है। फर्स्ट वन इज स्पिन सिलेक्शन रूल। Spin selection rule. Now what is spin selection rule? पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। Spin selection rule states that in case of a transition, delta S should be equal to 0. In case of a transition, in case of a transition, delta S should be equal to 0, or spin multiplicity should not change. Spin multiplicity should not change. Should not change. ठीक है। नाउ ये हमें एक्सप्लेन करना है व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा एस एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्पिन मल्टीपलिसिटी, ठीक है। डेल्टा एस मीन्स डिफरेंस इन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो वहां पे जो स्पिन इसका होगा उसके और ग्राउंड स्टेट के स्पिन में जो डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट स्पिन क्वांटम नंबर होगा दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस। इसको एग्जांपल से समझेंगे। मान ले हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ग्राउंड स्टेट में, हमने इसको एनर्जी दी in the form of light. One of the electron undergoes excitation. एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ट्रांजिशन की उसने, और वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में दो तरीके से पॉसिबल है। या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। नाउ we'll try to explain what's meaning of delta S equal to 0 or what's meaning of spin multiplicity. This is without transition. ट्रांजिशन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया वो या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा। पहले सिंपल तरीका समझने का, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां पे है इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। जब यही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे गया यहां पर भी इसकी जो स्पिन है दैट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो इसने ट्रांजिशन के दौरान अपनी स्पिन चेंज नहीं की, सो इट्स स्पिन हैज नॉट बीन चेंज्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट चेंज इन स्पिन होगा 0, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इस ट्रांजिशन में ये वाला रूल ओबे होता है बिकॉज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज। या ऐसे भी समझेंगे, यहां पे ये वाला इलेक्ट्रॉन -1/2 दिखाता है स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे भी -1/2 दिखा रहा है। ऑब्वियसली जो डेल्टा एस का वैल्यू होगा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। पहले भी एंटी क्लॉकवाइज अब भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ट्रांजिशन के दौरान इसने अपने स्पिन चेंज नहीं की, स्पिन रिवर्सल नहीं किया,
इसको आप कहोगे डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 एंड हेंस दिस ट्रांजिशन इज फॉलोइंग स्पिन सिलेक्शन रूल। जरा दूसरे में जाइए, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज था लेकिन यहां पे क्लॉकवाइज आया है तो +1/2 होगा, +1/2 -1/2 स्पिन चेंज हो रहा है तो इस केस में डेल्टा एस का वैल्यू होगा 1 बट डेल्टा एस शुड बी 0। इसका मतलब ये है कि ये वाली ट्रांजिशन स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए इसी को हम दूसरे तरीके से समझेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पिन मल्टीपलिसिटी। स्पिन मल्टीपलिसिटी जो होता है, मैं खाली फॉर्मूला लिख रहा हूं, मुझे स्पिन मल्टीपलिसिटी यहां समझाने की जरूरत नहीं है। स्पिन मल्टीपलिसिटी इज इक्विवेलेंट टू 2s + 1 where this s represents total spin quantum number of electrons. This s represents total spin quantum number of electrons. ठीक है, अगर आप इस केस में जाओगे, दो इलेक्ट्रॉन्स का टोटल स्पिन क्या बनेगा? s is equal +1/2 -1/2 तो नेट स्पिन 0 होगा। ठीक है, +1/2 -1/2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कैंसिलेशन होगा, s is equal to 0। ठीक है, इस केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज +1/2 -1/2 s is equal to 0 टोटल स्पिन। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज 1/2 1/2 तो इस केस में s होगा 1। ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज 1/2 1/2 तो टोटल स्पिन होगा 1। ठीक है, तो स्पिन मल्टीपलिसिटी इन फर्स्ट केस स्पिन मल्टीपलिसिटी का वैल्यू क्या होगा? पुट s इज इक्वल टू 0। पहले केस में s इज इक्वल टू 0। अगर आप स्पिन मल्टीपलिसिटी में s 0 लोगे सो 2 × 0 + 1 दैट्स इक्वल टू 1। तो इसमें स्पिन मल्टीपलिसिटी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, लेकिन इसमें अगर आप s का वैल्यू 1 रखोगे 2 × 1 + 1 दैट्स इक्वल टू 3 तो इसमें स्पिन मल्टीपलिसिटी 3 आएगा। ठीक है, जहां स्पिन मल्टीपलिसिटी 1 होगा इसको हम कहते हैं सिंगलेट। If spin multiplicity is equal to 1, it's known as singlet. अगर spin multiplicity 3 आया, it's called as triplet. ठीक है, now अब यहां पे समझेंगे spin multiplicity should not change, यानी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा it should go from singlet to singlet or triplet to triplet. Multiplicity should not change. Singlet to singlet is allowed, triplet to triplet is allowed, but singlet to triplet या triplet to singlet is not allowed. अब देख लीजिए, जब ये ट्रांजिशन हुई ओरिजिनल स्टेट में स्पिन मल्टीपलिसिटी 1 सिंगलेट, यहां पे भी सिंगलेट है, इसका मतलब है ये स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब यहां जाए, यहां सिंगलेट यहां ट्रिपलेट तो स्पिन मल्टीपलिसिटी चेंजिंग, इसका मतलब ये स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, सो दिस ट्रांजिशन इज फॉलोइंग स्पिन सिलेक्शन रूल, सो इट इज स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउड but it is spin selection rule forbidden because ये spin selection rule को follow नहीं कर रहा है। This is the first selection rule, that spin selection rule, the statement simple है, in case of a transition delta S should equal to 0, spin quantum number जो इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में है वो चेंज नहीं होना चाहिए, या spin multiplicity should not change। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपने देख ली। This was the first rule called as spin selection rule। Now we'll move to the second rule। दूसरा रूल जो है हमारा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रूल है। That rule is called as Laporte selection rule। Second rule that's called as a Laporte selection rule। A Laporte selection rule। Laporte selection rule। Laporte selection rule क्या है? स्टेटमेंट पहले, only those transitions are allowed which involve change in parity। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा एक्सप्लेन कर लेंगे। only those transitions are allowed
only those transitions are allowed which involve change in parity or symmetry. This is a Leporti selection rule. वही ट्रांजिशंस अलाउड है जिसमें पैरिटी या सिमेट्री चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है? दैट इज डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू 1 where this L represents azimuthal quantum number। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाए उस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, azimuthal क्वांटम नंबर शुड चेंज बाय 1। ठीक है, azimuthal क्वांटम नंबर का चेंज होना चाहिए बाय 1। ठीक है, इफ इट इज 0 इट डज नॉट फॉलो, इफ इट इज 2 इट डज नॉट फॉलो, चेंज शुड बी 1। अब इसको कैसे समझेंगे? बाद में पैरिटी और सिमेट्री पे भी हम आते हैं। वी नो दैट वी हैव सब शेल्स नेम्ड S, P, D एंड F। इनका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है इट इज 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम S टू P और P टू S, इसमें जो L का वैल्यू चेंज होगा दैट विल चेंज बाय 1। ऑब्वियसली 1 और 0 में तो डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू चेंज हो रहा है डेल्टा L का, डेल्टा L इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है ये ट्रांजिशन अलाउड है ऑन द बेसिस ऑफ लेपोर्टी सिलेक्शन रूल। So azimuthal quantum number should change by 1 as far as this rule is considered। या तो इलेक्ट्रॉन S to P जाना चाहिए या तो P to S जाना चाहिए। जरा अब मैं S to D जाता हूं। जब आप S to D इलेक्ट्रॉन मूव करोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विल ऑकर फ्रॉम S to D और D to S। इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 2 है। सो इसका मतलब है एजिमुथल क्वांटम नंबर डेल्टा L का वैल्यू 2 होगा। दिस इज नॉट अलाउड बाय लेपोर्टी सिलेक्शन रूल। सो SD ट्रांजिशन और DS ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड बाय लेपोर्टी सिलेक्शन रूल दैट गवर्न्स कलर फॉर्मेशन, कलर इंटेंसिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर S to F होगा या F to S होगा वो भी अलाउड नहीं है। P to D and D to P is allowed because इसका 2, इसका 1, चेंज तो 1 होगा। Similarly D to F and F to D is allowed। सो लेपोर्टी सिलेक्शन रूल के बेसिस पे खाली वो ट्रांजिशंस अलाउ होंगे जहां पे डेल L शुड चेंज बाय 1, यानी डेल्टा L शुड बी इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, इसका एक और स्टेटमेंट देंगे हम। इफ आई गो टू S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, जो आपने शेप्स भी पढ़े होंगे, S ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल, वेव फंक्शन की साइन सेम होती है। P ऑर्बिटल डंबल शेप्ड, एक लोब में वेव फंक्शन की साइन पॉजिटिव, दूसरे में वेव फंक्शन की साइन नेगेटिव। डी ऑर्बिटल्स की अगर आप बात करोगे, वी हैव गॉट 4 लोब्स। ठीक है, ये वेव फंक्शंस की साइन है, 2 लोब उसमें पॉजिटिव, 2 लोब उसमें नेगेटिव। एंड एफ ऑर्बिटल्स की शेप जो है दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ एस ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेंटर। क्यों? अगर आप यहां से और यहां से जाओगे, वेव फंक्शन की साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स। सो दिस इज सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेंटर, तो इट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस सेंटर को आप कहोगे सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस वजह से इस ऑर्बिटल को हम सिमेट्रिकल कहेंगे, या जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा भी होगा, इसको हम कहते हैं जी रेड, रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली जी।
जरा विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेंटर देखिए, अगर आप यहां से जाओगे वेव फंक्शन की साइन पॉजिटिव, यहां से जाइए वेव फंक्शन की साइन नेगेटिव, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, ठीक है, तो वेव फंक्शन की साइन सेम नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेंटर, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेंटर। इसको हम नाम देते हैं अनजीरेट, रिप्रेजेंटेड बाय यू, ठीक है। नाउ गो टू द डी ऑर्बिटल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव सेम, यहां नेगेटिव नेगेटिव सेम, तो ये भी सिमेट्रिकल हुआ, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसको भी हम कहेंगे जीरेट और सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय जी। तो एस ऑर्बिटल्स आर जीरेट, p orbitals are ungerade, d orbitals are gerade and f orbitals भी ungerade ही होते हैं, ठीक है। now go to the statement, only those transitions are allowed which involve change in the parity, सिमेट्री में चेंज आना चाहिए, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए फ्रॉम सिमेट्रिकल टू अनसिमेट्रिकल, या तो जाना चाहिए फ्रॉम अनसिमेट्रिकल टू सिमेट्रिकल, यानी ट्रांजिशन होनी चाहिए फ्रॉम जीरेड टू अनजीरेड या अनजीरेड टू जीरेड। अगर ट्रांजिशन जीरेड टू अनजीरेड हुआ या अनजीरेड टू जीरेड हुआ, वो ट्रांजिशन अलाउ है, लेकिन ट्रांजिशन जो होती है फ्रॉम जीरेड टू जीरेड और अनजीरेड टू अनजीरेड, वो ट्रांजिशंस अलाउ नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ change in the parity. So only those transitions are allowed which involve change in the parity. Change in parity मतलब जीरेड टू अनजीरेड होना चाहिए या अनजीरेड टू जीरेड होना चाहिए, जीरेड टू जीरेड या अनजीरेड टू अनजीरेड, ये ट्रांजिशंस अलाउड नहीं है, ये ट्रांजिशंस अलाउड है। अब देख लीजिए आप, एस पी डी एंड एफ, ठीक है, ये जीरेड, ये वाला अनजीरेड, ये वाला जीरेड, ये वाला अनजीरेड, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर एस टू पी हुआ दैट जीरेड टू अनजीरेड अलाउड है, सो एस पी इज अलाउड या पी एस इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। एस डी जीरेड टू जीरेड, ठीक, सो एस डी इज नॉट अलाउड। जरा पी डी देख लीजिए, पी डी, ठीक है, अनजीरेड टू जीरेड अलाउ होगा, ठीक है। तो एस पी या एस पी या पी एस, इलेक्ट्रॉन एस टू पी जाए या पी टू एस जाए अलाउड है, इलेक्ट्रॉन पी टू डी जाए या डी टू पी जाए अलाउड है, इलेक्ट्रॉन डी टू एफ जाए या एफ टू डी जाए अलाउड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एस टू एस जाए, इलेक्ट्रॉन एस टू डी जाए, वो अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉन पी टू पी जाए या इलेक्ट्रॉन पी टू एफ जाए, वो अलाउड नहीं है ऑन द बेस ऑफ लेपोर्टी सिलेक्शन रूल। सो लेपोर्टी सिलेक्शन रूल का स्टेटमेंट सिंपल है, ओनली दोज ट्रांजिशंस आर अलाउड which involve change in the parity, change in the symmetry, only those transitions are allowed which occur either from G-rate to N-G-rate or from N-G-rate to G-rate. G-rate to G-rate not possible, N-G-rate to N-G-rate not possible. या इसका दूसरा short statement है, delta L should be equal to 1. Change in principal quantum number should be equal to 1. These are the two selection rules that we are going to use the color formation in transition metal compounds, where we will discuss the different transitions. Now, transition metal compounds में जो color का reason है वो हम explain करेंगे on the basis of 3 transitions, 3 factors responsible for the color formation. उनमें पहला factor जो है that is DD transition. The factors responsible for color formation in transition metal compounds, that is DD transition, ठीक है। Now what is DD transition? Now you will be aware, ये लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल है, ये हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल है, ठीक है। यहां भी डी ऑर्बिटल, यहां भी डी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, दिस phenomenon is known as DD transition. So what is DD transition? It is transition of electron
from lower energy d orbital, from lower energy d orbital to higher energy d orbital, to higher energy d orbital. This is the meaning of dd transition. ठीक है? Now question arises, अगर d orbitals degenerate है, उनकी एनर्जी सेम है, how is it possible, how come it is possible that electron will move from lower energy d orbital to d higher energy d orbital, या d orbitals की एनर्जी अलग अलग कैसे है अगर d orbitals degenerate है? ठीक है, उसके लिए पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था, there is a phenomenon called as crystal field splitting. Crystal field splitting. Crystal field splitting occurs in case of transition metal complexes, compounds. ठीक है, ligand unsymmetrical field create कर देता है जिसकी वजह से d orbitals की splitting होती है. There is loss in the degeneracy of d orbitals due to unsymmetrical field of ligand, या आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिटेल में डिस्कस करोगे. लिगेंड्स अनसिमेट्रिकल फील्ड क्रिएट कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, d orbitals अपनी degeneracy लूज करते हैं and they divide mainly into two sets, not necessarily in two sets, but mainly into two sets, one with lower energy and another with higher energy. ठीक है, that phenomenon is called as crystal field splitting. ठीक है, मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा. ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ऑक्टाहाइड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो 5 d orbitals है जो डिजेनरेट है, 3, 4, 5 जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, उनको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से 2 डिविजन्स होते हैं, वन विथ लोअर एनर्जी, अनदर विथ हायर एनर्जी. लोअर एनर्जी में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, dxy, dyz, dzx, और हायर एनर्जी में 2 ऑर्बिटल्स आते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. इन ऑर्बिटल्स को हम सिमेट्रिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं T2g और हम इनको कहते हैं Eg. ठीक है, नाउ दिस splitting of d orbitals into 2 sets is called as crystal field splitting, or you can say this loss in the degeneracy of d orbitals due to unsymmetrical field created by the ligands is called as crystal field splitting. अब आपके पास 2 सेट आ गए, T2g सेट एंड Eg सेट. ठीक है, तो अब मैं यहां लिखने वाला हूं, लोअर एनर्जी सेट होगा T2g सेट और हायर एनर्जी वाला सेट होगा Eg सेट. अगर इलेक्ट्रॉन T2g में है, इस पे लाइट पड़ेगी, इट विल एब्जॉर्ब द लाइट फ्रॉम द विजिबल रीजन, कोई कलर एब्जॉर्ब करेगा, कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, एंड इट विल मूव टू हायर एनर्जी सेट, दैट्स Eg सेट. ठीक है, ये हायर एनर्जी सेट पे जाएगा, Eg सेट पे जाएगा. ठीक, नाउ electron is moving from lower energy T2g set to higher energy set, that's Eg set. This phenomenon is called as transition. Since नीचे भी d orbital ही है, ऊपर भी d orbital भी है, as a result of this phenomenon is called as dd transition. और इस dd transition के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, जो वेवलेंथ चाहिए, that falls in the visible region of electromagnetic spectrum and hence it will give the color. इस वजह से कलर देगा, and again the color that is being transmitted is complementary to the color that is being absorbed. जैसे कॉपर सल्फेट में हमने डिस्कस किया था. So this is the meaning of a DD transition. ठीक है, now इस DD transition की characteristics क्या है? सबसे पहली बात, what are the characteristics of this DD transition? First point, presence of ligand is necessary. अगर ligand नहीं होगा तो splitting possible नहीं है. अगर splitting नहीं होगा तो DD transition is not possible. So presence of ligands is must. First, presence of ligands
is must. You don't only require transition metal. लिगेंड होना जरूरी है। लिगेंड क्यों होना चाहिए? वो सप्लिटिंग करेगा, अगर वो सप्लिटिंग करेगा तभी तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इज मस्ट। पॉइंट 2, electronic configuration in d orbitals should be between d1 to d9. d1 to d9 configuration, यहां dd ट्रांजिशन हो सकती है, ठीक है। d0 और d10 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? लेट मी एक्सप्लेन। इफ इट इज d0, यहां ट्रांजिशन होगा। d0 में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल होगा? तो d0 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो कलर नहीं आएगा। अनदर केस d10 में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है। अगर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है सो ट्रांजिशन इज आल्सो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहां पे भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तीसरा केस जो आप अंडरस्टैंड करोगे ज्यादा क्लियरली इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, दैट इज d5 हाई स्पिन। d5 हाई स्पिन, d5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हाई स्पिन? व्हाई दिस ट्रांजिशन डज नॉट ऑकर देयर? जब आप कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ोगे वहां पे आपको ये क्लियर होगा। मुझे यहां पे वहां नहीं जाना बिकॉज इट विल टेक मच मोर टाइम टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है। सो d0 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, d10 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। एक और केस है दैट इज d5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां पे भी ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, बाकी में ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। नंबर 3, ठीक है, जरा dd ट्रांजिशन देख लीजिए। dd ट्रांजिशन इज ऑलवेज स्पिन अलाउड। Spin of the electron remains same both in ground as well as excited state, ठीक है। क्या ये लेपोटी अलाउड है? जरा लेपोटी सिलेक्शन रूल देख लीजिए। लेपोटी सिलेक्शन रूल के बेसिस पे हमने कहा इट शुड बी फ्रॉम जी रेड टू अनजी रेड और अनजी रेड टू जी रेड। नीचे भी डी ऑर्बिटल्स, ऊपर भी डी ऑर्बिटल्स, दोनों के दोनों जी रेड है, सिमेट्रिकल है। सो दिस ट्रांजिशन ऑकर्स फ्रॉम जी रेड टू जी रेड, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट डज नॉट फॉलो Lepoty selection rule, or this transition is a Lepoty forbidden. As a result of that, dd transitions में जो color intensity होती है वो बहुत कम होती है। They are spin allowed but not Lepoty allowed. So dd transition जो होते हैं they are spin allowed, यानी स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं, बट दे आर लेपोटी फॉरबिडन। लेपोटी फॉरबिडन, लेपोटी फॉरबिडन का मतलब ये है दे डू नॉट फॉलो लेपोटी सिलेक्शन रूल। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इनमें जो कलर इंटेंसिटी होगी, कलर इंटेंसिटी इज लेस, कलर इंटेंसिटी इज लेस। दिस इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, लिगेंड की वजह से कलर इंटेंसिटी में फर्क आ सकता है। कैसे कलर इंटेंसिटी में फर्क आएगा देख लीजिए। अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा, लिगेंड स्ट्रांग होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स, ये हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स, यहां फिर से मैं बना रहा हूं लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स एंड हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, लेट मी रिप्रेजेंट दैट बाय डेल्टा ई। यहां भी एनर्जी गैप है, लेट मी रिप्रेजेंट दैट बाय डेल्टा ई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम T2G set to EG set. Electron again here is moving from T2G set to EG set, ठीक। ये केस है वीक लिगेंड, दिस इज द केस ऑफ वीक लिगेंड and this is the case of strong ligand, ठीक है। अगर लिगेंड वीक होगा, वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड आगे आप पढ़ोगे डिटेल में भी, वीक लिगेंड स्प्लिटिंग कम करेगा तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगी वो कम होगी। अगर एनर्जी गैप कम होगी तो हमें कम एनर्जी चाहिए, अगर कम एनर्जी चाहिए तो लैम्डा एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है। सो वी कैन से डेल्टा ई एब्जॉर्प्शन
delta E absorption in this case is less, but lambda absorption will be high because energy और wavelength के बीच में inverse relation I will write it here is equal to hc by lambda. inverse relation है energy और lambda के बीच में. अगर energy absorption कम होगा तो lambda absorption high होगा. अब strong ligand देख लीजिए. strong ligand क्या करेगा? splitting ज्यादा करेगा. splitting ज्यादा करने का मतलब है कि energy gap ज्यादा होगा. अगर energy gap ज्यादा होगा तो इसका मतलब है energy of absorption ज्यादा चाहिए. तो ठीक है. so delta E absorption यहां पे हाई होगा. अगर डेल्टा ई एब्जॉर्प्शन हाई है तो लैम्डा एब्जॉर्प्शन इसमें लेस होगा. दिस इज डिफरेंस बिटवीन द टू लिगेंड्स. ठीक है. तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होती जाएगी, एनर्जी गैप बढ़ती जाएगी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता जाएगा और वेवलेंथ ड्रॉप होता जाएगा. ठीक है. इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. सो विथ increase in strength of ligand, ठीक है, E absorption, energy of absorption will increase but lambda absorption will decrease. ठीक है. These are the characteristics of DD transition. So DD transition is simply transition of electron from lower energy d orbital to higher energy d orbital, and this DD transition is possible only because of crystal field splitting. ठीक है. तो कुछ मेन characteristics हमने लिए. Presence of ligand is must. अगर ligand नहीं होगा, absorption नहीं होगा, splitting नहीं होगा. ठीक है. Point number 2, D1 to D9 में DD transition possible है. D0, D10, D5 high spin में transition possible नहीं है. तीसरा पॉइंट, इट्स स्पिन अलाउड बट लेपोटी फॉरबिडन, उसकी वजह से कलर इंटेंसिटी इनमें कम आएगा. थर्ड, विथ इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज एंड लैम्डा एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज. दिस वाज ऑल अबाउट डीडी ट्रांजिशंस. एट द एंड ऑफ कलर हम कुछ क्वेश्चंस इसमें कर लेंगे. चलिए, मैं आपसे बता रहा हूं क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो कलर? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो कलर? इनमें से कोई कलर नहीं दिखाएगा. पहला, आयरन डाई पॉजिटिव एक्वस. एक्वस मतलब वाटर है, तो लिगेंड्स आर देयर. सेकेंड, कॉपर डाई पॉजिटिव एक्वस. थर्ड, क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव एक्वस. एंड फोर्थ, जिंक डाई पॉजिटिव एक्वस. इनमें कहां कलर आएगा? ऑब्वियस सी बात है, जहां ट्रांजिशन पॉसिबल है वहां कलर आएगा. जहां ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी कलर नहीं आएगा. ठीक है. दीज आर द केसेस. पॉइंट नंबर 2, आयरन 2 पॉजिटिव. आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d6. कॉपर 2 पॉजिटिव 3d10 4s1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d9. क्रोमियम 3 पॉजिटिव 3d5 4s1, तो ये बनेगा 3d3. जिंक 2 पॉजिटिव 3d10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 3d10 है. ठीक है. d6 d1 टू d9 ट्रांजिशन है, कलर है. d9 d1 टू d9 कलर है, ट्रांजिशन इज पॉसिबल. d3 ट्रांजिशन इज पॉसिबल, कलर है. d10, लुक एट दैट, d10 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी, इसका मतलब इसमें कलर नहीं आएगा. तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा. इसमें से जिंक डाई पॉजिटिव एक्वस कलर नहीं दिखाएगा. रीजन इज बिकॉज इट्स d10 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें कलर पॉसिबल नहीं है बिकॉज डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल. चलिए, दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर फॉर्मेशन इन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स. सेकेंड फैक्टर that's responsible for color formation is charge transfer spectra. Charge transfer spectra. Yeah, simply I will write charge transfer.
सेकेंड, चार्ज ट्रांसफर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस चार्ज ट्रांसफर? तो इससे पहले हम एक एग्जाम्पल पे जाएंगे. पोटेशियम परमैंगनेट, a well-known compound, KMnO4. ठीक. Another example, potassium dichromate, K2Cr2O7. Third, potassium chromate, K2CrO4. These three compounds. पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो D0 हुआ. क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर क्रोमियम +6 हुआ तो फिर से D0 हुआ. अगेन क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिर से D0 हुआ. ठीक है. तो इनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन है. अभी हमने देखा कि D0 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती है. अगर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी तो कलर नहीं आएगा. बट वी नो दैट पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है, इसका कलर ऑरेंज. ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, कलर रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है. पोटेशियम क्रोमेट, इट्स येलो इन कलर. तो तीनों का कलर है. कलर तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन तीनों में कलर है. व्हाट इज द रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इसका रीजन क्या है? ठीक है. तो इनमें एक स्पेशल फिनोमिनन होता है, दैट्स नॉट एडी ट्रांजिशन ऑब्वियसली, एंड दैट फिनोमिनन इज चार्ज ट्रांसफर. सो व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर? ठीक है. तो वो हम एक्सप्लेन कर लेंगे यहां पे. चार्ज ट्रांसफर है क्या? चार्ज ट्रांसफर इज सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स. मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स. मेटल और लिगेंड ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, उसको आप कहते हो चार्ज ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. मतलब ये मेटल है और ये लिगेंड है, या तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड टू मेटल जाएगा. ठीक है. इसको हम कहते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर. या ये भी पॉसिबिलिटी है MLCT, यानी इलेक्ट्रॉन विल अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल ऑर्बिटल टू लिगेंड ऑर्बिटल. ऐसे इसको आप कहोगे MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. दोनों पॉसिबिलिटीज होती है. लिगेंड टू मेटल भी जाता है और मेटल टू लिगेंड भी जाता है. थोड़ा सा इनके बारे में लेंगे, ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करना है, बट थोड़ा सा इनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में पहली बात यह है कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होना चाहिए. मेटल शुड हैव, first of all, should have high oxidation state. जब high oxidation state है तो वैकेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे. वैकेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा बनेगी. सेकेंड पॉइंट, obviously metal should have vacant orbitals. Metal should have vacant orbitals. Should have vacant orbitals. मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए. ठीक है. तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा. नंबर थर्ड, जो लिगेंड है उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए. लिगेंड शुड हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर. कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए लिगेंड के पास. ठीक है. एंड फोर्थ पॉइंट रिगार्डिंग दिस, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन होती है. इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो इसकी होगी ऑक्सीडेशन. ठीक है. और मेटल की होगी रिडक्शन. मेटल की होगी रिडक्शन.
ठीक है, तो इस केस में मेटल होना चाहिए रिड्यूसिबल और लिगेंड होना चाहिए ऑक्सीडाइजेबल. सो लिगेंड should be oxidizable. It should have tendency to undergo oxidation and obvious metal should be reducible. जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल होगा तो इसके रिडक्शन के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं. ठीक है, और ये किन लिगेंड्स में ज्यादा होती है? ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कोई भी दिखा सकता है प्रोवाइडेड कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो. ठीक है, अब लिगेंड्स कौन से होते हैं? मेनली ऑक्साइड्स में होता है, हैलाइड्स में होता है, सल्फाइड्स में होता है. मेनली इन 3 लिगेंड्स में होता है चार्ज ट्रांसफर, एंड दैट चार्ज ट्रांसफर इज LMCT. ठीक है, सो चार्ज ट्रांसफर इज सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स. ठीक, ये कैसे हो सकता है? 2 तरीके से हो सकता है. या तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हम लिगेंड ऑर्बिटल टू मेटल ऑर्बिटल, दैट्स कॉल्ड एज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर. इसकी कंडीशंस, मेटल शुड हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा. मेटल शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, कम से कम एक वैकेंट ऑर्बिटल तो होना चाहिए. थर्ड, लिगेंड शुड हैव एट लीस्ट 1 लोन पेयर, कम से कम 1 लोन पेयर होना चाहिए. लिगेंड शुड बी ऑक्सीडाइजेबल, क्योंकि इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको ऑक्सीडेशन हो रही है और इसको रिडक्शन हो रही है. और ये किन लिगेंड्स में होता है? मेनली दीज 3 लिगेंड्स. अब MLCT पे अगर हम जाएंगे, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर जस्ट अपोजिट देयर. यहां पे लिगेंड शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, लिगेंड शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल. यहां पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. सेकेंड, मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट. वहां पे हाई था, यहां पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट. इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इस पे के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो ये आराम से लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे सकता है. और वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इवन नेगेटिव, बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है या लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, और इसमें लिगेंड कौन सा होता है? उन लिगेंड्स को हम कहते हैं पाई एसिड लिगेंड्स. पाई एसिड लिगेंड्स जो आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, पाई एसिड लिगेंड्स को टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल आल्सो. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है और ऑर्गेनिक लिगेंड्स है. बहुत सारे एग्जांपल्स है. ये हुआ LMCT और ये हुआ MLCT. ठीक है, अब जो ये ट्रांजिशन हो रही है, जब ये ट्रांजिशन हो रही है और इस ट्रांजिशन के दौरान एनर्जी जो अब्सॉर्ब होगा, दैट एनर्जी absorbed is in visible region. As a result of that, it can also produce color. ठीक है, अब चाहे MLCT हो या LMCT हो, ठीक है, इन दोनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है. 2 पॉइंट्स पे मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूं. फर्स्ट, जो चार्ज ट्रांसफर का कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर. ठीक है, फर्स्ट, चार्ज ट्रांसफर में इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन होती है. इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, चाहे वो MLCT हो या LMCT हो. जैसे कि आपने यहां देखा, लिगेंड यहां ऑक्सीडाइज होता है और मेटल रिड्यूस होता है. MLCT में उल्टा होगा, वहां पे मेटल ऑक्सीडाइज होगा और लिगेंड रिड्यूस होगा. इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन ऑकर्स इन चार्ज ट्रांसफर. सेकेंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये स्पिन अलाउड तो होते ही है, क्या ये लेपोर्टी सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं? लेट मी शो एन एग्जांपल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो आपने देखा. वहां पे मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स बने हैं और MnO में, MnO4 नेगेटिव में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +7
अब आप खुद समझ सकते हो, अगर ये +7 है तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में LMCT होगा कि MLCT होगा। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑब्वियसली लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ऑक्सीजन के filled orbital to vacant orbital of manganese. This is charge transfer. इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो ऑक्सीजन MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट या पोटेशियम पर मैग्नेट जो आप कहोगे कि MnO4 नेगेटिव, जिसको पर मैग्नेट आयन कहते हैं। पर मैग्नेट आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 है, तो अभी -2 है, अब ये बनेगा -2 से ऑक्सीडाइज होके ये -1 बनेगा, और ये +7 से ऑक्सीडाइज होके रिड्यूस होके +6 बनेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 था, अब ये -1 बनेगा। -2 to -1 ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे पहले +7 था, अब ये +6 बनेगा, तो यहाँ पे रिडक्शन होगी। जो पहला पॉइंट मैंने कहा, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब जो मुझे दिखाना है, यहां पे जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वो कहां से कहां हो रहा है। मैग्नीज के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिनको मैं ऐसे बना लेता, ठीक है। ऑक्सीजन के पास तो p ऑर्बिटल्स ही ऑब्वियसली, सो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम p ऑर्बिटल टू d ऑर्बिटल, ठीक है। सो ट्रांजिशन ऑकर्स फ्रॉम p टू d। p orbital is G-rayed और un-G-rayed, शाबाश। p orbital is un-G-rayed, d orbital is G-rayed, un-G-rayed to G-rayed। इसका मतलब ये है कि ये लेपोर्टी सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है। लेपोर्टी सिलेक्शन रूल स्टेट्स दैट या तो ट्रांजिशन G-rayed टू un-G-rayed होना चाहिए या un-G-rayed टू G-rayed होना चाहिए। इसका मतलब है कि चार्ज ट्रांसफर इज लेपोर्टी एज वेल एज स्पिन अलाउड। अगर दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो इसका मतलब इस केस में कलर इंटेंसिटी हाई होगा। कलर इंटेंसिटी विल बी हाई, कलर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। दीज आर द मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर सिंपली इलेक्ट्रॉन का मूव करना फ्रॉम लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड ऑर्बिटल। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दिखाया, चाहे MLCT हो या MLCT हो। MLCT और LMCT में डिफरेंशिएट करना आसान है। LMCT में मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, लेकिन MLCT में मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन होती है। नंबर 2, इसमें दोनों रूल्स फॉलो होते हैं, लेपोर्टी सिलेक्शन रूल एज वेल एज स्पिन सिलेक्शन रूल। इसकी वजह से इसमें कलर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। दिस वाज द सेकंड फिनोमेनन रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर फॉर्मेशन इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। Third and the final phenomenon that is responsible for color formation in transition metal compounds, that is a well-known phenomenon जो आपने क्लास 11th की केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, that is polarization. Third factor responsible for color formation is polarization. Polarization, ठीक है। पोलराइजेशन आपने पढ़ा होगा इन टर्म्स ऑफ फजान्स रूल्स, मुझे वहां डिटेल में नहीं जाना है। पोलराइजेशन सिंपली जब आपके पास एक एनायन हो ऑफ द फॉर्म A नेगेटिव, कैटायन ऑफ द फॉर्म C पॉजिटिव। कैटायन जब एनायन के क्लोज जाएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर देगा, जिसकी वजह से इसमें सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स होगा, जिसको आप कहते हो फिनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन। एंड दिस पोलराइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म होता है। दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। दिस इज पोलराइजेशन, ठीक है। आपने फजान्स रूल्स में पढ़ा होगा, फॉर द इफेक्टिव पोलराइजेशन कैटायन शुड बी स्मॉल एंड एनायन शुड बी लार्ज। कैटायन का पोलराइजिंग पावर, खींचने का पावर ज्यादा होना चाहिए, और एनायन की पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होना चाहिए। एनायन शुड गेट इजिली पोलराइज्ड,
ठीक है। तो उसके लिए एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए और कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, उसमें उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उसमें उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। इस डिफॉर्मेशन की वजह से कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर फॉर्मेशन। तो जिसमें जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जिसमें जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वहां उतना पोलराइजेशन और वहां उतना कलर फॉर्मेशन होगा। सो वी राइट दैट कलर फॉर्मेशन इन एनी सॉल्ट, कलर फॉर्मेशन इन एनी सॉल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, is directly proportional to polarization। जहां पे जितना ज्यादा पोलराइजेशन पॉसिबल है, वहां पे कलर आने के चांसेस ज्यादा है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट मी टेक सिल्वर हैलाइड्स, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो मुझे कलर फॉर्मेशन के लिए बस आई हैव टू चेक पोलराइजेशन, ठीक है। नाउ कैटायन शुड बी स्मॉल, इन सभी में कैटायन सेम है, तो कैटायन से डिसाइड नहीं कर लेंगे कहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा। एनायन शुड बी लार्ज, यानी एनायन का साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब किस केस में एनायन का साइज ज्यादा है? वी नो दैट फ्लोरीन टू आयोडीन साइज इंक्रीजेस, सबसे ज्यादा साइज आयोडीन का होगा। तो यहां पे मैक्सिमम पोलराइजेशन, मैक्सिमम पोलराइजेशन, तो इस केस में पोलराइजेशन मैक्सिमम है और इस केस में पोलराइजेशन मिनिमम, मिनिमम पोलराइजेशन एंड मैक्सिमम पोलराइजेशन, ठीक है। इसका मतलब है इसमें कलर आने के चांसेस ज्यादा और इसमें कलर आने के चांसेस कम, ठीक है। तो यहां पे कलर आने का चांस सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, क्योंकि पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है, और यहां पे कलर आने के चांसेस सबसे कम है। एंड इफ यू लुक एट दीज कंपाउंड्स, ये कलरलेस, ये वाला भी कलरलेस, दिस इज पेल येलो एंड दिस कंपाउंड इज येलो। It clearly indicates कि कलर आने के चांसेस पोलराइजेशन पे डिपेंड है। यहां मैक्सिमम पोलराइजेशन था, इस वजह से यहां पे कलर है, यहां पे मिनिमम पोलराइजेशन है, इस वजह से यहां पे कलर नहीं है, ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बड़ा एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन आयोडाइड में है, तो वहां पे कलर आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। सो आई एम गिविंग द स्टेटमेंट एंड यू विल लिसन टू द स्टेटमेंट केयरफुली, वेरी गुड स्टेटमेंट। इफ फ्लोराइड इज कलर्ड, अगर फ्लोराइड कलर्ड होगा, then it is necessary that chloride, bromide, iodide will also be colored। यहां तो मिनिमम पोलराइजेशन है, अगर इसी में कलर आ गया तो इन सभी में कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर फ्लोराइड कलर्ड है तो ये सारे के सारे कलर्ड हो गए। इट इज नेसेसरी दैट ऑल द अदर हैलाइड्स विल आल्सो बी कलर्ड। सेकंड स्टेटमेंट, इफ फ्लोराइड इज कलरलेस, अगर ये कलरलेस हुआ, then it is not necessary that these three will also be colorless। इनमें कलर आ भी सकता है क्योंकि यहां से तो पोलराइजेशन बढ़ रही है। So if fluoride is colorless, it is not necessary that all the halides should also be colorless। This is statement 2। Now those statements regarding iodide, ठीक है, listen carefully, आप खुद समझ सकते हो। अगर आयोडाइड कलर्ड है, अगर आयोडाइड में कलर है, तो ये जरूरी नहीं है कि इनमें भी कलर हो, क्योंकि यहां पे तो मैक्सिमम पोलराइजेशन है, यहां तो कलर आ सकता है। इनमें कलर हो या ना हो वो जरूरी नहीं है। सो इफ आयोडाइड इज कलर्ड, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द अदर हैलाइड्स विल आल्सो बी कलर्ड। लास्ट स्टेटमेंट, इफ आयोडाइड इज कलरलेस, अगर आयोडाइड कलरलेस है, इफ आयोडाइड इज कलरलेस, देन इट इज नेसेसरी दैट ऑल दीज हैलाइड्स शुड आल्सो बी कलरलेस। क्योंकि अगर इधर ही कलर नहीं आया, यहां तो मैक्सिमम चांस कलर के थे, अगर इसी में कलर नहीं आया तो ये जरूरी है कि यहां पे भी कलरलेस ही होगा। दीज आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोलराइजेशन। सो थर्ड फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इज पोलराइजेशन। सो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में
तीन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। कौन कौन सा फैक्टर? पहला डी ट्रांजिशन, सेकंड चार्ज ट्रांसफर एंड थर्ड पोलराइजेशन। एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन JEE एग्जाम्स, which of the following is responsible for color formation in transition metal compounds? Question: which of the following is responsible for color formation in transition metal compounds? Asked JEE. First option DD transition, second option charge transfer, third factor polarization, and fourth factor all of these। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव। अक्सर स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, दे जस्ट नो क्विकली DD ट्रांजिशन। वो जब DD ट्रांजिशन देख लेते हैं उसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, क्या खाली DD ट्रांजिशन रेस्पॉन्सिबल है? नो, DD ट्रांजिशन भी रेस्पॉन्सिबल है, चार्ज ट्रांसफर भी रेस्पॉन्सिबल है, पोलराइजेशन भी रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट्स ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो दिस वाज द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो इसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव सिंपल आ जाएंगे about DD transition. Rarely you will be asked a question about charge transfer. तो वहाँ DD transition में देखना होगा D0 और D10 को एक्सक्लूड करके बाकी केसेस में कलर आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक और केस दिखाया था D5 हाई स्पिन। ठीक है, और रेयर केस है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं आएगा। तो तीन टाइप का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कलर्ड, वहाँ D1 to D9 देख लीजिएगा। ठीक है, और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, ये कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स है। तो इनमें जो मैंने दिखाया था कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है चार्ज ट्रांसफर, ये भी JEE में आया था। कलर इन पोटेशियम परमैंगनेट अराइजेस बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन, FF ट्रांजिशन, LMCT, MLCT। तो पोटेशियम परमैंगनेट में लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, दैट्स रेस्पॉन्सिबल कलर फॉर्मेशन। और ये भी आएगा कि अगर इस कंपाउंड का कलर सपोज ये है तो बता दीजिए इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया। तो वो कंप्लीमेंट्री कलर्स आप निकाल सकते हैं जो ऑलरेडी आपने डिस्कस किया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कलर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। थैंक यू सो मच।